Hello friends, welcome to QuestLink IS. This video belongs to Prelims Mastery program of QuestLink IS. In this video, I am going to discuss some very important geography question which has been asked in many examinations like UPSC, BPSC and other state PCS examination. The topic of this video is India's latitude, longitude, India time zones and India's boundaries. So let's discuss question number first. Let me choose a pen. Okay, so let's discuss question number first. With reference to India, which of the following statement are correct? India is the sixth largest country of the world. Actually, India is not the sixth largest. India is seventh largest. So this is wrong statement. Actually, the correct sequence is Russia, Canada, China, okay, Brazil, Australia, and India. This is the correct sequence. CANADA. Okay, this is the correct sequence. So this is wrong. India occupies 2.4% of the total. Yeah, this is correct, and every student should remember the data of India total geographical area and its share in total area of the world. So 2.4% of the world. Yeah, this is correct. Tropic of Cancer passes through the middle of the country, dividing it into two individual halves. Yeah, this is also correct statement because Tropic of Cancer 23.5 degree north latitude divide India into two halves, in southern peninsular India and the northern plain. So this is correct statement. India lies completely in the tropic zone. Actually, this is wrong statement because as we saw India, this is the rough map of India. ये मेंस में बहुत ही हेल्प होता है. Every student should draw a rough map of India. If see this is India and this is Tropic of Cancer, so यहाँ इसके नीचे जो भी होंगे वहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसके ऊपर जो भी है सब ट्रॉपिक क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिक. सो ये नहीं कह सकते कि इंडिया सिर्फ ट्रॉपिक जोन में आता है. इंडिया ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक दोनों में आता है. सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. सो ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन फोर्थ आप जैसे ही हटाइएगा एंड फर्स्ट भी हटेगा, तो 2 and 3 is the correct statement. Let's move to the next question. This is the explanation. Okay. Which of the following is the correct latitudinal extent of the mainland India? तो ये हमें याद करने की आवश्यकता होती है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट करेक्ट क्या है. तो हमने यहाँ पे एक बढ़िया सा मैप लगाया है. आपको जो मेनलैंड इंडिया से कनेक्टेड है उसका जो लैटिट्यूड है, सबसे सदर्न लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट जो सबसे ऊपर का नॉर्थ में है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और जो साउथ में है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, एंड जो वेस्ट में है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे है, एंड जो ईस्ट में है वो 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट पे है. ये बिल्कुल ही हमें याद होना चाहिए. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ओके. और जो ये है कभी कभी ऑप्शन में अंडमान को लेकर पूछता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पे. तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है एंड 37 डिग्री 6 भी नॉर्थ है. तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है, द करेक्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इंडिया. तो 6 डिग्री 45 एंड 37 डिग्री 6, तो यही होना चाहिए. तो बाकी आप देख सकते हैं 8 करेक्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया. एक्चुअली यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है मेन लैंड ऑफ इंडिया. खाली इंडिया दिया होता. इफ इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट ओनली इंडिया, सो वी शुड हैव टेकन इट 6 डिग्री 45 मिनट, बट इट इज मेन लैंड इंडिया. सो द मेन लैंड इंडिया इज we will consider this wala
8 degree 4 minute north and 37 degree 6. So answer should not be this. Answer should be this. D option. So let's see which option has been taken. Yeah, also it has taken D option as correct. So let's move to question number 3. The latitude that passes through Sikkim also passes through. So ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है ऐसे, और यूपीएससी पसंद करता है ऐसे क्वेश्चंस को पूछना। हमें बस इसमें ये पता होना चाहिए कि जो सिक्किम है वो बहुत ही नॉर्दर्न स्टेट है, और हम जब इंडिया का मैप बनाने का आइडिया होता है तो हमें पता है कि जो 37 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो तो एकदम सबसे टॉप पे है, और सिक्किम उसके बाद हम नीचे आते हैं, कुछ नीचे आते हैं और फिर ऐसे जाते हैं। तो जो भी सिक्किम का जो लैटिट्यूड होगा वो मतलब ऐसा होगा कि वो जम्मू कश्मीर से तो बिल्कुल नहीं पास करेगा, हिमाचल से भी नहीं करेगा एंड उत्तराखंड से भी नहीं करेगा। वो कहां से पास करेगा? उत्तर प्रदेश से करेगा, एंड ये बिहार से नहीं पास करता है, ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, ऐसे जाता है, नेपाल से करता है, एंड ये दिल्ली के नीचे से थोड़ा सा राजस्थान से जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राजस्थान वुड बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ये काफी क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, इसको करने के लिए काफी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, खासकर इंडिया का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन से स्टेट पास हो रहे हैं और कितने स्टेट पास हो रहे हैं, और इंडिया का जो टाइम जोन है उससे कितने स्टेट पास हो रहे हैं, उस लॉन्गिट्यूड पे कितने स्टेट है और कौन से नियरेस्ट सिटी है, ये हमें याद होना चाहिए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये आ जाते हैं। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से पास करता है? तो यहाँ पे गुजरात से करता है, छत्तीसगढ़ से ये करता है, उत्तर प्रदेश से नहीं करता और झारखंड से भी करता। तो फर्स्ट सेकंड 4 इज द करेक्ट आंसर। बट मैं आपको यहाँ पे एक निमोनिक बताना चाहता हूँ, ये तो अभी हमें याद था तो हमने बता दिया, पर हमें ये पूरा याद होना चाहिए कि किस किस स्टेट से ये पास करता है। तो ये 8 स्टेट से पास करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 स्टेट से पास करता है। और इसका एक निमोनिक मैंने बनाया है जिसे आप देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग निमोनिक है। गुरु माँ चले झारखंड, वहां मिले ट्राइब। जी से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो झारखंड है ही, वहां से वेस्ट बंगाल याद रखिएगा, एंड एम से मिजोरम, एंड ये टी से त्रिपुरा। मेरा स्टाइलिश में थोड़ा इशू हो रहा है, ये बार बार थोड़ा सही से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ओके लेट्स, सो ये याद रखिएगा, गुरु माँ चले झारखंड, वहां मिले ट्राइब, मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। यहाँ पे ये सब एक फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, बट सिर्फ यहाँ पे निमोनिक बनाने के लिए मैंने हल्का सा यहाँ पे चेंज हो गया है क्योंकि वो बैठ नहीं रहा था, तो मिजोरम को मैंने आगे लिख दिया, त्रिपुरा को पीछे लिखा। बस ये याद रखिएगा, ऐसे ये याद होता ही है कि त्रिपुरा वेस्ट बंगाल में है और मिजोरम म्यांमार की तरफ है, बस ये याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अमंग द फॉलोइंग सिटीज व्हिच वन इज नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सा नियरेस्ट है? देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, ये याद रहना चाहिए कि ये है, ठीक है, 23 एंड 30 मिनट नॉर्थ। सो ये अहमदाबाद, भोपाल, रांची, ये बिल्कुल उससे पास जाता है, और इसके अगल बगल की सिटी है कोलकाता, धनबाद, बड़ोदरा, राजकोट। पर ये हमें याद होना चाहिए, इंदौर एक याद होना चाहिए, कोलकाता याद होना चाहिए, और ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि जो मतलब अच्छी सी मतलब जो कभी पूछी गई हो। तो
कोलकाता के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो इसका आंसर कोलकाता ही है, बट ये हमेशा कंसर्न रहता है कि हमेशा क्या ये आएगा। तो कुछ सिटीज का हमें याद होना चाहिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जैसे दिल्ली, दिल्ली का जो लैटिट्यूड है वो 28 डिग्री है नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री। और जब दिल्ली से आप एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींचते हो, तो ये जो लाइन है ना, ये भोपाल यहाँ पे है, भोपाल और बेंगलोर से होकर गुजरती है। ये तीनों का 77 डिग्री ही लॉन्गिट्यूड है। तो ये आप याद रखिए कि दिल्ली, भोपाल एंड बेंगलोर, ये तीनों का 77 डिग्री ही लॉन्गिट्यूड है। तो ये तीनों बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो इन तीनों का लॉन्गिट्यूड आप याद रखिए। यहाँ पे क्वेश्चन टॉपिक ऑफ कैंसर का था और पूछा जा रहा, तो आप दिल्ली तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि दिल्ली काफी ऊपर आता, 28 डिग्री के आसपास है, और यहाँ पे क्वेश्चन 22 और 23 डिग्री पे ही है, क्योंकि 23 डिग्री के आसपास पूछ रहा है। टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे होता है। तो कोलकाता का जो है वो 22 डिग्री होता है। जोधपुर का कुछ ज्यादा ही होता है, जोधपुर का नहीं होगा, देख सकते हैं आप। ये कभी नहीं आंसर हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। और ये जो नागपुर है इसका 21 डिग्री होता है। तो ये थोड़ा सा डाइसी था कि यहाँ पे इन दोनों में कोई एक हो सकता है, बट कोलकाता के साथ जाना ज्यादा सेफर ऑप्शन होगा। तो क्योंकि नागपुर जो आप देख रहे हैं ना, 23 से ये 2 डिग्री का डिफरेंस है नागपुर में, और ये 23 से 1 डिग्री का डिफरेंस है। तो आंसर तो कोलकाता ही होना चाहिए, और कोलकाता ही आंसर है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following river of India crosses the Tropic of Cancer twice? ये भी एक काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर एक माही है। ये मध्य प्रदेश में की एक रिवर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। बट जो ये हमें बस याद रखना, गल्फ ऑफ खंबात में ये जाकर ड्रेन कर जाती है अरबियन सी में। चंबल रिवर भी है। चंबल रिवर जो है ना, वो ये रिवराइन बैडलैंड बनाती है, और ये एक यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर, और रिवराइन बैडलैंड बनाती है ये। और ये नर्मदा रिवर है, जो हमारी रिफ्ट वैली, जो हमारी इंडस जो एक सतपुरा रेंज एंड विंध्य रेंज होती है, उसके रिफ्ट वैली में ये बहती है, और ये बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, नर्मदा एंड तापी रिवर। सो ये दोनों आंसर तो नहीं है, आंसर ए है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। Which among the following places will have maximum day length in the month of June? This is a very conceptual question. यहाँ पे मैक्सिमम डे लेंथ पूछ रहा है, और वो भी जून के महीने में। तो देखिए, जून के महीने में हम इस क्वेश्चन को आंसर ऐसे कर सकते हैं। हमें ये देखना होगा कि जून के महीने में सन का पोजीशन कहाँ होता है। तो हम जून के महीने में ये देखेंगे कि जून में हमारे तरफ नॉर्थ इंडिया में काफी गर्मी होती है, यानी सन का पोजीशन ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है सन, ठीक है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन होगा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इस इलाके में यहाँ पे दिन और रात बराबर होगा, डे एंड नाइट इक्वल होगा। और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे, यदि हम नॉर्थ में दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे डे बड़ा होगा और नाइट छोटा होगा जैसे जैसे जाएंगे। और साउथ में जा रहे हैं तो इसका उल्टा होगा, हमारा डे जो होगा वो छोटा होगा और नाइट बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा मैक्सिमम डे लेंथ, यानी हमें दिन बड़ा चाहिए। तो दिन बड़ा चाहिए, इसका मतलब हमें लैटिट्यूड नॉर्थ की ओर जाना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ की ओर। तो सबसे ज्यादा नॉर्थ पे कौन है? हैदराबाद तो सॉदर्न है, नहीं होगा। चेन्नई साउथ में नहीं होगा। भोपाल नहीं होगा, भोपाल तो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एकदम यहीं पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है। तो ये नहीं होगा, दिल्ली करेक्ट आंसर है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया इज अराउंड 30 डिग्री। हाँ, ये करेक्ट है। आप देख सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 घटाएंगे तो लगभग 29 पॉइंट समथिंग आता है, जो कि 30 डिग्री के अप्रॉक्स माना जाता है। और 68.7 डिग्री ईस्ट एंड 97.25 डिग्री ईस्ट है, इसको भी घटाएंगे 29 पॉइंट ही समथिंग आता है। तो ये तो करेक्ट है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2.5 आवर। एक्चुअली 2.5 आवर्स नहीं है, बिकॉज आप अभी ये ऊपर स्टेटमेंट 1 में आप देखें कि 30 डिग्री है। और इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं कि टाइम एंड लैग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा है कि 24 डिग्री में
24 आवर में अर्थ अपने एक्सिस पे 360 डिग्री रिवॉल्व करती है। यानी 1 आवर में ये 360 डिग्री बाई 24 होगी। यानी जब इसे आप काटते हो 460 15, ठीक है। यानी 1 आवर में अर्थ 15 डिग्री रिवॉल्व कर जाती है अपने जगह पे, अपने एक्सिस पे। तो 30 डिग्री का जब डिफरेंस है यहां से लेके यहां तक, तो 2.5 आवर तो नहीं होगा। 15 डिग्री जब ये है तो 15 इंटू 2 ही 30 डिग्री हो जाता है। यानी 2 आवर का ही डिफरेंस होना चाहिए बिल्कुल। इंडिया के वेस्ट से इंडिया के ईस्ट में जो टाइम लैग का गैप होगा, ईस्ट 2 घंटे आगे होगा और वेस्ट 2 घंटे पीछे होगा। तो ये 2.5 आवर दे दिया है, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, द 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, ये है, मैंने मैप में लगाया स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये है। टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। यस, ये भी सही है, हमारा एक ही टाइम जोन है जो कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट पे हम इसको रखें, और पूरे कंट्री का जो टाइम जोन टाइम हम कैलकुलेट करते हैं वो इसी से कैलकुलेट करते हैं। हमारा लोकल टाइम डिफरेंट होता है, बट ये स्टैंडर्ड टाइम हम एक ही रखे हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट में भी यही घड़ी फॉलो होता है, हमारे यहाँ भी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूरे इंडिया, केरल, तमिलनाडु, नॉर्थ, जम्मू कश्मीर, सब जगह इसी के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। तो इसमें ऑप्शन जो 2 है वो फॉल्स है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे फॉल्स दिया है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, बट 3 तो करेक्ट है, 3 इज करेक्ट, तो ये तो फला गलत हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स है, ये 3 करेक्ट है, तो ये बी ही आंसर होगा, फर्स्ट ट्रू। तो आप ये देख सकते हैं इसका आंसर बी होगा, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if it is 10 a.m. at Indian Standard Time, then what would be the local time at Shillong at 92 degree east? Okay. जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक कैलकुलेशन याद रखिएगा कि लोकल टाइम पे 10 बजा है और हमें 92 डिग्री ईस्ट पे पूछ रहा है, तो हमें अपने स्टैंडर्ड टाइम से पूछ रहा है कि 92 डिग्री ईस्ट पे कितना होगा। व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट शिलोंग एट 92 डिग्री ईस्ट, तो 92 डिग्री ईस्ट पे कितना होगा, तो हमें स्टैंडर्ड टाइम पे 10 बजा, यानी 82.5 पे कितना बजा है, 10 बजा है। इसको 92 से आप घटाते हो तभी तो आपको पता चलेगा कितना टाइम का डिफरेंस है, कितना डिग्री का डिफरेंस है। 99.5 डिग्री का डिफरेंस आया, या और 1 डिग्री का तो डिफरेंस में 4 मिनट का गैप आता है, यानी आप इसे 4 डिग्री का, अभी तो हमने कैलकुलेट किया था ना कि 1 आवर में 15 डिग्री अर्थ मूव करता है, तो यानी 1 डिग्री, सॉरी, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री है, तो 1 मिनट में 15 बाई 60 होगा, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री, यानी अर्थ जो है 1 डिग्री टाइम, 1 डिग्री जब रिवॉल्व करता है तो हमें 4 डिग्री का टाइम लैग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 9.5 में कितना होगा, इसमें यदि 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 520 36 38, यानी 38 मिनट का हमें टाइम लैग देखने को मिलेगा। अब हमें यह देखना है कि हम ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, यदि ये स्टैंडर्ड टाइम है, ये हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो इसके इधर हमारा टाइम आगे होगा और इसके पीछे हमारा टाइम पीछे, मतलब वेस्ट में हमारा टाइम पीछे जाएगा और ईस्ट में हमारा टाइम आगे जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है। तो पहला ईस्टर्न सेक्शन हमारे तरफ जल्दी सामने आता है अर्थ के, और वहां पे दिन पहले हो जाता है, तो इसके कारण ये ईस्ट की ओर हमारा समय आगे रहेगा ईस्टर्न सेक्शन में, और वेस्ट की सेक्शन में पीछे रहेगा समय। तो जो सुबह जल्दी किधर होगा, ईस्ट की ओर, तो समय ज्यादा आगे कहाँ होगा। यदि 10 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे और 92 डिग्री, यानी पूछ रहा समय इधर की ओर, 92 डिग्री तो कुछ इधर होगा, 92 डिग्री ईस्ट, यानी समय 10 से ज्यादा होगा। तो 10 से ज्यादा क्या होगा, 10 से कितना ज्यादा होगा, 38 मिनट,
38 मिनट और AM में होगा, तो ये ऑप्शन होगा, बाकी सारे रॉन्ग ऑप्शन है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप यहाँ पे मैंने मैप लगाया है, ये याद रखिएगा। ये यूपी से पास होता है और बिल्कुल ईस्टर्न सेक्शन ऑफ एमपी को टच करता है, एंड देन छत्तीसगढ़ को क्रॉस करता है, उड़ीसा से जाता है, उड़ीसा के बिल्कुल सदर्न सेक्शन से, और फिर ये आंध्र प्रदेश जाता है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 स्टेट से इंडिया से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश से तो जा रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। छत्तीसगढ़ से भी जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। महाराष्ट्र से ये नहीं जो गुजर रहा है, तो ऑप्शन इसका महाराष्ट्र होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following cities, which one lies on the longitude closest to the Delhi? अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही शायद सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि हमें कुछ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद रखना, उसमें दिल्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नेशनल कैपिटल है। आप देख सकते हैं यूपीएससी 2018 में आ चुका है। तो दिल्ली 28 लॉन्गिट्यूड है। जब आप इसे एक लाइन यहां से लॉन्गिट्यूड खींचते हो ना, तो ये बिल्कुल भोपाल और बेंगलोर के से पास से होकर गुजरता है। तो आप ऐसे ऐसे देख सकते हो। तो ये 3 सिटीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे और आप देखोगे तो ऑप्शन में भी यही रहेगा, ऑप्शन में भी बेंगलुरु रहेगा, भोपाल रहेगा ही रहेगा, और हैदराबाद रहेगा ही रहता है। हमने 3-4 क्वेश्चन यूपीएससी में और स्टेट केसेस में देखा, उसमें ये रहता ही रहता। तो आप ये 3 सिटीज याद रखिए। तो लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू, देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है बेंगलुरु ही होगा बस, तो बेंगलुरु ही ऑप्शन होगा। तो बाकी नागपुर, पुणे, हैदराबाद आप देख सकते हो कि कहाँ पे हैदराबाद थोड़ा ईस्ट में पड़ता है, नागपुर और थोड़ा ईस्ट में पड़ता है, पुणे तो खैर काफी वेस्ट में है, ये आपको पता होगा, मुंबई के ज्यादा करीब होता है। तो पुणे तो आप ऐसे भी हटा सकते हो। तो और हैदराबाद ये सब नहीं होगा, तो बेंगलोर इसका करेक्ट आंसर है। ऑन विच प्लेटू डू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये काफी डाइसी क्वेश्चन था, 2023 बीपीएससी में पूछा गया था। तो इसमें पूछ रहा था आईएसटी टाइम जो है कौन से प्लेटू को क्रॉस करता है, ऑन विच प्लेटू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अच्छा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो यहां से जा रहा है ऐसे, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो यहां से आ रहा है। तो देखिए मालवा प्लेटू जो है ना, ये काफी बेस्ट में है। मालवा प्लेटू इसका ऑप्शन कभी नहीं होगा, आंसर्स बुंदेलखंड और बघेलखंड में, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। मालवा प्लेटू क्योंकि हमने पढ़ा कि एमपी के सदर्न सेक्शन में है और मेनली राजस्थान के साउथ ईस्ट में है, ये है मालवा प्लेटू। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है मालवा प्लेटू। तो ये तो काफी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो उत्तर प्रदेश और नैनी इलाहाबाद के एरिया से गुजरती है, यानी समवेयर अराउंड यहाँ पे ऐसे, ये अभी तो हमने बनाया था ना, ऐसे कुछ गुजर रही है। तो जब ऐसे गुजर रही है तो ये तो नहीं होगा। अब बुंदेलखंड और बघेलखंड, बुंदेलखंड जो है ना वो बघेलखंड से वेस्टवर्ड है, ये वेस्टवर्ड है, तो हमें तो एक ईस्टवर्ड ऑप्शन चाहिए। ईस्टवर्ड प्लेटू कौन सा है, तो ईस्टवर्ड प्लेटू बघेलखंड है। ये याद भी करने की चीज है, और ये हमें एक ज्यादा मैपिंग प्रैक्टिस करने से, प्लेटूज और हाईलैंड प्रैक्टिस जब करते हैं तो हमें ये आइडिया आ जाता है। तो यहाँ पे बुंदेलखंड ऑप्शन नहीं होगा, बघेल, क्योंकि बुंदेलखंड देखिए ये है बुंदेलखंड और ये है बघेलखंड, और यहीं से क्रॉस कर रहा है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। Okay, let's move to next question. Which one of the following latitudinal extent is relevant for the whole territorial extent of India? अभी इंक्लूडिंग आइलैंड, देखिए जब आपको अंडमान पूछना होगा तो वो कुछ ऐसा वर्ड लिखेगा जैसे होल टेरिटोरियल और आइलैंड भी इंक्लूड करे। अब आपको पता है कि 8 डिग्री 437 ये नहीं होगा, बिकॉज कि ये सिर्फ मेनलैंड इंडिया को कवर करता है, जबकि 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 ये पूरा अंडमान को भी कवर करता है। तो इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। और साउथ नहीं हुआ कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो ये बिल्कुल ऐसे मिस्टेक ना करें, ये साउथ कभी नहीं हो सकता। तो इसको तो पहले ही हटा दीजिए, नॉर्थ का ही ऑप्शन होगा कि इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है।
Okay, let's move to question number 14. Why is India why why is India's north-south distance greater than its east-west distance, even though both its latitudinal and longitudinal extents are roughly 30 डिग्री? मतलब दोनों, हमारा लैटिट्यूड का डिफरेंसेस भी 30 डिग्री ही आता है एक्सटेंट का, और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंसेस भी 30 डिग्री ही आता है, फिर भी गैप आता है। जो हमारा जो डिस्टेंस है ना, वो ईस्ट वेस्ट का जो डिफरेंस है इंडिया का, ऐसे आप यदि मैप बनाओगे, मिनट, जस्ट ये, अब जस्ट थोड़ा सा, एक मिनट, बहुत ही रफ बन गया, बस थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। हाँ, इसको जस्ट सेकंड, ये गुजरात का एरिया है, यहाँ पे जैसलमेर आएगा, ये J&K आएगा, ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये नेपाल, भूटान, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है ये। हाँ, तो जो ये डिस्टेंस होता है ना, ये कह रहा है कि काफी अलग होता है। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होता है वो हो जाता है इंडिया लॉन्गिट्यूडनल, ये जो डिस्टेंस होता है ये 3214 किलोमीटर होता है, और ये होता है 2933 किलोमीटर। तो ऐसा क्यों होता है कि ये हमारा ज्यादा है नॉर्थ टू साउथ, और ईस्ट टू वेस्ट हमारा कम है? एक मिनट, शायद मैंने उल्टा लिखा। हाउएवर द नॉर्थ साउथ डिस्टेंस इज अबाउट 3200। हाँ, सॉरी सॉरी, सही है, नॉर्थ टू साउथ। अब ऐसा इसलिए हो सकता है बिकॉज देखिए, जो लैटिट्यूड है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है। ये आप ऊपर जाते जाइए, ऊपर जाते जाइए, लैटिट्यूड का डिफरेंस कभी कमता नहीं है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये सबसे मैक्सिमम इक्वेटर पे होता है, और ये जैसे जैसे आप देख रहे हैं दो लॉन्गिट्यूड का बीच का डिफरेंस ये घटता जा रहा है, जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जा रहा है, तो ये घटता जा रहा है। मैंने ये मैप को इसलिए लगाया यहाँ पे, इस फोटोज को, ताकि क्लियरिटी मिल सके। तो यानी इंडिया का लोकेशन तो समवेयर अराउंड 8 डिग्री एंड ये ऐसे कुछ है। 37 पे है ना, इंडिया का समवेयर लोकेशन ऐसा है, यहाँ पे ऐसा ऐसा है इंडिया का लोकेशन। तो जब इंडिया का लोकेशन यहाँ पे है, मतलब इंडिया का जो लोकेशन है वहां पे लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो अब 111 किलोमीटर नहीं होगा। ये जो विड्थ होगा ये 111 नहीं होगा, 111 तो यहाँ पे था इक्वेटर पे, यहाँ पे तो कुछ कम होगा ना, इसीलिए ये लेंथ कम हो जाता है, 2933 किलोमीटर ही होता है, बिकॉज ये लेंथ तो घटता रहेगा, और ऊपर आएंगे और घट जाएगा, और ऊपर आएंगे और घट जाएगा, और ऊपर आएंगे और घट जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड द पोल्स व्हाइल डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 15. With reference to India's maritime limit, consider the following statement. India's territorial water extend up to 12 nautical miles from the baseline. Yes, ये बिल्कुल करेक्ट है। अनक्लॉस जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑन सी है, वो ये कहता है कि 12 नॉटिकल माइल किसी का ये होता है, अगर जो ये हमारा कोस्टल एरिया है तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल जो है ये हमारा टेरिटोरियल वाटर होता है। इसके बाहर जो जो होता है ना 24 नॉटिकल माइल, ये होता है, इसको बोलते हैं कंटिग्यूअस जोन। और इसके जो 200 नॉटिकल माइल होता है, ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहां तक हमें मिनरल्स या कोई भी ऐसा सीबेड माइनिंग करना हो, ये मतलब एक कंट्री को अलाउंस मिल जाता है कि यहाँ तक आप माइंस कर सकते हैं। तो इसके बाद जो होता है वो हाई सी होता है, और यहाँ पे किसी भी कंट्री का सोवरेन राइट नहीं होता हाई सी में। तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑल रिसोर्सेस, ऑप्शन 2, ऑल रिसोर्सेस इन इंडिया टेरिटोरियल वाटर एंड कंटिनेंटल सेल्फ वेस्ट इन द स्टेट्स थ्रू
whom coasts they are located। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारा रिसोर्स जो है टेरिटोरियल वाटर में तो ठीक है, कंटिनेंटल सेल्फ देखिए, कंटिनेंटल सेल्फ एक बहुत ही ब्रॉड टर्म होता है। मान लीजिए ये इंडिया है, कंटिनेंटल सेल्फ क्या होता है? कंटिनेंटल सेल्फ होता है कि जो जहां से वाटर हमारा कोस्ट है उससे वो सेल्फ एरिया कितना दूर तक है, तो मे भी हमारा 200 नॉटिकल माइल यहीं तक खत्म हो गया, लेकिन कंटिनेंटल सेल्फ यहां तक एक्सटेंड हुआ, तो ये तो हाई सी में आ गया हमारा कंटिनेंट, ये तो सीबेड हो गया ना कंटिनेंटल सेल्फ, तो ये तो हाई सी में आ गया, तो ये तो कभी नहीं, मतलब यहाँ पे जो माइंस निकलेंगे या रोड्स निकलेंगे, मिनरल्स निकलेंगे, ये एक हमारे जो कोस्टल एरिया जो उस कंट्री के मतलब नेबर में होंगे या स्टेट थ्रू हो कोस्ट जिससे लोकेटेड होगा उसको मिल जाएगा, तो ये तो गलत होगा ऑप्शन। कंटिनेंटल सेल्फ के सारे रिसोर्सेस उसको नहीं मिल सकते, हाँ टेरिटोरियल वाटर के रिसोर्सेस मिल सकते हैं पर वो नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन 2 जैसे ही आप हटाते हो तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, फर्स्ट 3 करेक्ट है। और देखिए 296 आगे, टू आर्टिकल 297 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट थिंग्स ऑफ वैल्यू इन टेरिटोरियल वाटर कंटिनेंटल सेल्फ एंड एक्सक्लूसिव जोन इन द यूनियन। ये आपको ऐसे भी पता है कि ये स्टेट में नहीं आता है, जितने भी कंटिनेंटल सेल्फ और ये टेरिटोरियल वाटर ये रिसोर्सेस होंगे वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं, और वो इन यूनियन का मैटर है, स्टेट्स का मैटर नहीं है। और ये आपको नहीं भी पता होता 297 तब भी आप इसे करेक्ट ही जाते, क्योंकि अप टू पहले ही एलिमिनेट कर चुके थे ऑप्शन में। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? टॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम दे दिया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, ये दोनों को रिवर्स कर दिया है, ये दोनों गलत है। टॉपिक ऑफ कैंसर ये सही है, और प्राइम मेरिडियन ये तो रॉन्ग है। टॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड 30 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ओके, which of the following state is crossed by both the tropic of cancer and Indian standard time meridian? दोनों किससे क्रॉस होता है? ये काफी बेहतर क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ही नहीं होता है, तो ये तो अभी हमने याद किया था निमोनिक में, ये आता ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। ओडिशा, ओडिशा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है, ओके, तो ये भी नहीं आंसर होगा। हमें तो वो खोजना जो दोनों में कॉमन हो। छत्तीसगढ़ से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे आ रहा है, यानी इसका जो आंसर होगा वो छत्तीसगढ़ ही होना चाहिए, छत्तीसगढ़ ही होगा। यहाँ से टॉपिक ऑफ ये हमने अभी देखा था कि गुरु माँ चले झारखंड वहां मिले ट्राइब, तो झारखंड और चले, गुरु माँ चले, तो छत्तीसगढ़ चले में आ रहे थे, और यहाँ से हमारा हम मैप से देख भी पा रहे हैं कि ये भी आ रहा है, हमारा स्टैंडर्ड टाइम भी वहीं से क्रॉस करा, तो छत्तीसगढ़ ही ऑप्शन होगा, झारखंड भी नहीं होगा। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। If the local time at a place is 11 am while Indian standard time is 12 noon, which of the following is the most appropriate inference? ये भी काफी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि लोकल टाइम, यदि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप ये देखिए ना कि वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यदि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे है, यहाँ पे अभी 12 बजे हैं, 12 नून, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट, और यहाँ पे जो लोकल टाइम है ना वो 11 AM है, 11 AM मतलब इससे पीछे है, यानी हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे लोकल टाइम पीछे है, तो पीछे कहाँ हो सकता है? ये वेस्ट की तरफ हो सकता है कि ईस्ट की तरफ हो सकता है? हमने भी बताया कि टाइम यदि आगे होगा यानी वो ईस्ट की तरफ होगा, और टाइम यदि पीछे होगा यानी वो वेस्ट की तरफ होगा, यानी टाइम यहाँ पे क्या है? पीछे है, तो ये वेस्ट की तरफ होगा, और वेस्ट की तरफ होगा, और कितना पीछे है? तो 1 घंटा पीछे है, 11 AM है। हमने अभी देखा था कि 1 घंटा 15 मिनट 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री, तो ये कितना पीछे होगा? हमारे स्टैंडर्ड टाइम से 15 डिग्री का पीछे होगा, तो ये देखते हैं दिस प्लेस लाइज ईस्ट ऑफ द, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट नहीं होगा, ईस्ट में तो ये आगे हो जाना चाहिए था, यहाँ पे 11 नहीं 12 की जगह 1 होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया।
यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि द प्लेस लाइज वेस्ट ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बाय 15 डिग्री, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये लास्ट था। So please like and subscribe our video. Thank you.